एक दो मतलब फ्रेंड्स है, Okay. उनके एब्स है, मास नहीं है मसल में, दे आर फकिंग लीन, एक थप्पड़ मारोगे तो गिर जाएंगे, बट दे आर लाइक शोइंग ऑफ देयर ये मेरा एब्स है भाई। टू बी ऑनेस्ट वो कमजोरी है। Exactly. To be honest, अरे अगर तुम्हारे 50 kg बॉडी वेट में एब्स है, वो तो एब्स नहीं उसको कमजोरी कहते हैं। तुम- ये बता रहा था कि वो उसी से मतलब बोल रहा था कि काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, लाइक द टीचर यूज्ड टू हेट दिस दैट किड ना। हमारे स्कूल में भी हमने देखा था, एक टीचर रहेगा या टीचर रहेगा ना, वो एक बच्चे को ना वो हेट तक आ जाएगा। Someone who is facing bullying or someone who has faced bullying. So if you are faced bullying, selling And what the fuck is pan chai? I recently tasted in that Adavadi one, na, that uncle. I tasted pan chai. It tasted disgusting. What the fuck is pan chai? What the fuck is pan chai? क्या बोल रहे थे फिनटेक का इंडस्ट्री? इंडिया में fintech industry is going crazy. Yeah. There are bunch of companies, startups that are coming up, and बहुत ही ज़्यादा मतलब minimal interest में they're providing services like you can purchase from different various e-commerce websites and they let you purchase the product in term मतलब EMI के term में like. But don't you think कि वो तुम्हारा जो मेनली जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे लेटर, अमेज़न पे लेटर, उनको हैम्पर कर रहा है? हैम्पर कर रहा है, बट तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम ढूंढो चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हमने पहले बोल दिया था बट मेरा कट हो चुका था। आई गेस मैं थोड़ा डाल दूंगा तुम्हारा वो पार्ट कट करके। तो वही बात कर रहे थे हम लोग फिनटेक के बारे में, तुमने बताया था। मैं यही बता रहा था कि आज मैं थोड़ा कम एनर्जी में लग सकता हूँ बिकॉज आई एम स्लीप डिप्राइव्ड 2-3 घंटा। Don't worry, you got your caffeine addiction right. I got my caffeine addiction, caffeine and chai addiction. Right on point. वही मुझे अभी हेल्प कर रहे थे। Only caffeine is keeping him alive. Yeah, caffeine is the only thing that's keeping my eyes open now. So caffeine से याद आया। So today I was like आज सुबह मैं देख रहा था like I come across few YouTube videos about steroid and उसका जो indulgence होता है and how it's impacting in the fitness industry, है ना? तो first of all what do you feel like what do you like youngsters को कैसा message दे रहा है? What? About steroids. I mean when you see someone walking like तुमको पता चलता है कि ये इंसान नेटी है या मतलब नेचुरल है? like how do you identify someone if it's natural or not? Yes. So basically I am not into the fitness industry much, but मुझे जितना according to my knowledge मुझे जितना पता है like if you're natural ना, you will have I might be completely wrong, but what I know, you might have 3 things, right? What are the things? Strength, condition and mass. Yes. If you are natural, you can't have all the 3 things. If you are lean and you are cutting and you are natural, you will have less strength. If you have good strength, you are bulking, you will have less veins or less, but you'll have strength. But you will have strength, right? अगर तुम natural नहीं हो, taking some tren, you are taking some steroids, anabolics, कुछ भी, you are taking some anabolics, then what happens is you will get strength from that. You will get big also of the mass, and you will also get the cuts. So that's how you identify. Okay. What I feel is कि it's not giving a very good message to the exactly young people. And what मेरे हिसाब से जो लगता है ना, काफी ज्यादा दो यंग बच्चे हैं वो जो है ना अपने आप को इनसिक्योर फील करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी समवन वॉकिंग पास्ट मी एंड ही जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर 1 year या फिर 2 साल या फिर 3 साल कर रहा है, 4 साल कर रहा है, मुझे लगता है अरे मैंने 2 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा ये कब तक होगा? So there are also some मतलब बच्चे ही कहूंगा मैं उनको, पकड़ लो 1-2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके पास ना सप्लीमेंट का पैसा है ना प्रॉपर डाइट है, प्रोटीन इंटेक वो लोग का पूरा हो नहीं रहा है, कार्ब इंटेक कर रहे हैं, बट दे डेवलप सर्टेन लेवल ऑफ ईगो अपने माइंड में एंड लाइक अच्छा ठीक है तेरा बॉडी वेट कितना है अभी? 76 लास्ट 76 है ना,
तो तू लैट पुल डाउन कितना मार लेगा? I don't know, around मतलब फुल प्रॉपर फॉर्म में आई गेस प्रॉपर फॉर्म में कितना 50 55 55 60 60 तक मार लेगा तू, है ना? प्रॉपर फॉर्म reps मतलब सिंगल रैप नहीं, 15 15 16 reps। हाँ। अरे लेट पुल डाउन तू तू पावर लिफ्टिंग में अगर जाएगा कहीं पे, तू कोई I नेशनल won't show lat pull down, लेट पुल डाउन वहां पे होगा भी नहीं। bench press, बेंच प्रेस squats, होगा, स्क्वाट्स deadlift। होगा और डेडलिफ्ट होगा, राइट? ये हम लोग को पता है, ठीक है? इट्स अ स्पोर्ट, ठीक है, जो वाइडली खेला जाता है ऑल अक्रॉस द कंट्री। बट कुछ लोग आके तुझको चैलेंज करेंगे कि नहीं मैं तो 80 मार लेता हूँ, मैं 70 मार लेता हूँ। अरे 75 भाई मार क्या लेता हूँ। करेगा तू 75 का and 80 see, का तू लैट पुल डाउन मार रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे तेरी बॉडी बन रही है। तू 1-2 मारेगा, लोगों को दिखाएगा। Is this going to give you any structure? तेरा कुछ No, फॉर्म होगा क्या? no कुछ नहीं हो रहा है बेसिकली। जो अगर आप हाइपोट्रोफी, अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है कोई, तो उसमें क्या होता है, द बेसिक फॉर्मूला की आप वर्कआउट कर रहे हो, 15 रेप्स के तुम मारे, तुम एक एवरेज इंसान हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग, यू बेसिकली तुमको बॉडी का एस्थेटिक्स बिल्ड करना है, तुमको एब्स चाहिए भाई, तुमको अभी कट्स चाहिए, बैक में अच्छा तुमको मास चाहिए, मसल मास चाहिए, तो तुम कितना करो? तुम्हारा मेन गोल होगा कि मैं अगर 50 भी मार रहा हूँ तो मैं 50 के 15 रेप्स लगाओ, 4 सेट या 5 सेट, जितने भी आप सेट लगाओ, है ना, प्रॉपर फॉर्म में, ताकि मेरा बैक हिट हो रहा है। या अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो बेंच प्रेस मेरा चेस्ट हिट हो रहा है, लोअर चेस्ट अपर चेस्ट जो भी मार रहे हो, है ना, राइट? दैट इज द पॉइंट। बट सम यंगस्टर्स, व्हाट is happening is they are developing some sense of misconception और ideas कि मतलब मैं ज्यादा weight उठाऊंगा तभी मेरा body बनेगा। It's wrong। and that's a completely हाँ, difference। अभी तुम 3-4 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो and you want to tear your muscles so that you are, तुमको मतलब अभी तुम ज्यादा मसल तुम टेयर करोगे, ज्यादा डैमेज करोगे हैवी वेट मार के, फिर वो मसल मेरा रिपेयर होगा। बट that is done by someone who has been doing or has been in the fitness industry for a long time, and they have achieved the natural thing, and they have achieved the natural physique, right? yeah exactly। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे भाई के एक दो मतलब फ्रेंड्स है, okay। उनके एब्स है, मास नहीं है मसल में, दे आर फकिंग लीन, एक थप्पड़ मारोगे तो गिर जाएंगे, बट दे आर लाइक शोइंग ऑफ देयर, ये मेरा एब्स है भाई। टू बी ऑनेस्ट वो कमजोरी है। एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, अरे अगर तुम्हारे 50 kg बॉडी वेट में एब्स है, वो तो एब्स नहीं, उसको कमजोरी कहते हैं। तुम मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो। एग्जैक्टली, हैव अ प्रॉपर डाइट, 3-4-5 अंडे खाओ, 10 अंडे भी खाओ, but have some diet and have some mass to show। and वो देखो, I also agree to your point, I also disagree to your point। क्यों? देखो, now we are most of the guys, what they are doing, like you are also doing hypertrophy, right? You are doing hypertension to your muscle, and some of them you are basically achieve what your goal is to achieve a aesthetic body, right? yes। and जो तुम बोल रहे हो ना, to maximum weight, that is done by those who are doing strength training, those who are doing power lifting। वही बोला, exactly। अभी आप पावर लिफ्टिंग मारो, बेंच मारो, तुम वो completely reps 100 मारो, उसमें रेप्स का कोई लेना देना ही नहीं है। तुमको जाना है, अगर तुम परफॉर्म भी करोगे, तुम जाके तुम अगर बेंच कर रहे हो, तुम जाके तुम you have to do one rep, only one rep, yeah, और मैक्सिमम वेट में करना है, ठीक है? that's your PR ना, basically what we do। जैसा तुम स्क्वाट करते हो, तुम्हारा स्क्वाट का एक PR होगा, ठीक है? the different things, अभी मैं अगर बोलूं मेरा बाइसेप, जो इसको क्या कहते हैं, इसको ट्राइसेप एक्सटेंशन का PR, that's not a fucking PR, that's not a fucking lat pull down is not a fucking PR। उसमें PR करके तुम क्या झाड़ उठा लोगे यार? वही तो, अभी देखो, these are some things that comes with your maturity exactly। तुमको अभी एज आने तो you will get matured। To the youngsters, I only want to give you one message कि see, if you are doing like तुम अपने बॉडी के साथ कुछ कर रहे हो, you're into the fitness thing, very good for you, करते रहो, don't build ego, दिमाग में ईगो मत रखो, तुमको कंपटीशन नहीं करना है। तुम कंपटीशन करोगे ना, जाके स्टेज पे जब तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होगा, वहां जाके कंपटीशन करो,
ठीक है and that will basically ruin you, na, the competitive mind when you compete, your competition should be with yourself. Exactly, right? exactly. And what the fuck is competitiveness to fellow? अगर तुमको पता है, ठीक है, तुम अच्छा मार रहे हो, तुम ज्यादा मार रहे हो, बट एक चीज रहता है ना, आई रिसेंटली एक मतलब मुझे मेरा अभी ये याद आ रहा है, एक रील तुमने भी देखा होगा, जो एक रील आता है ना, अहंकार अंधा कर देता है. अहंकार अंधा कर देता है. That's the basic motto. अहंकार अंधा कर देता है. तो भाई अहंकारी मत बनो. Do your best. You are working out. You are doing good for yourself. That's very good. That's very good. Yeah, that's very good. Just don't, जैसे तुमने बताया, don't compete with anyone else because but with yourself. But with देखो तुम when you जब होता है ना भाई, when you build that mindset कि नहीं मेरे को compete करना है, ये जो steroid indulgence ये सब जो abuse होता है, तभी होता है ना competitive. तू अभी 50, तेरा body weight अभी 50 किलो का है, तू अभी शिवम को देख के बोल रहा है मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए और 1-2 साल में चाहिए, नहीं होगा ना भाई. ये लोग 10-15 साल से फिटनेस में है. Exactly. In fact more. And the thing is, if you are not achieving to go professional in bodybuilding, मत जाओ steroids के लिए भाई. बहुत ज्यादा side effects है. There are more side effects to it than good things, right? Blood cancer, kidney failures, heart attacks. Major one is heart attacks. यार कितने सारे लोगों का हो रहा है. numbers of, मतलब तुमको दिखा दे, मतलब you just go to YouTube, वहाँ पे search करो death by steroid abuse. बस there will be millions. And you know about Rich Piana? Yeah, you told me like that that is not steroid, that is synthol. वो तो अलग चुतियापा है. वो अलग चुतियापा है. He was also on steroid. वो बहुत साल से steroid पे था. He wanted to achieve that massive body. वो जो Hulk वाला है ना, वो वाला. वो अलग चुतियापा है. His death was a tragedy यार. उसने मतलब synthol का भी use किया था, मतलब like there is one Indian guy also ना, I showed you, I don't know his name, मैं भूल गया. तुमको भी दिखाया था ना, that इसका bicep teared हो चुका था steroid synthol का. Mr. Olympia ना, पता नहीं, there was I saw a clip. हाँ, यहाँ से लीक कर रहा था. That's not bleeding. अपना पस जो है ना, synthol पस निकल गया था. That's fucking गंदा दिखता है वो. तुमको नहीं करना है ना, if you're not doing professionally. एंड वो भी है ना, अगर देखो, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज जो अभी नया मतलब कॉलेज से आ रहे हैं, दे डोंट हैव पॉकेट मनी इवन टू अफोर्ड जिम. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डू सम होम वर्कआउट्स, डू सम पुशअप्स, डू सम पुलअप्स, अपने आप को फिट रखो, डू सम रनिंग, बी एथलेटिक बेसिकली. दैट इज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. एंड आल्सो वन थिंग, आई हैव सीन यंग किड्स, दे अब्यूज गुटखा, स्मोकिंग. अरे भाई, तू जो पैसा गुटखा स्मोकिंग में दे रहा है, हम लोग भी बच्चे थे, we have also gone through that phase. मत करो वही. We understood, मतलब अभी जाके वो realization हुआ है कि what we have done और what we've been doing जो हमारे लिए गलत था. So basically अगर तू 15 रुपए का 3-4 गुटखा खा रहा है ना, that's very, उस पैसे से तू यार केला खरीद ले 2, बस तू बादाम खरीद ले, तू एक पैकेट दूध पी ले या कुछ भी, मतलब अच्छा जो तेरे बॉडी में, अंडा खरीद ले. अंडा ऑमलेट तो बनाना सबको आता है, बॉयल अंडा तो कोई भी कर लेगा, कर ले, मतलब बॉडी में दे यार, बॉडी में डाल, एंड डू समथिंग. एंड इससे जो है ना, लोग काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि इफ आई स्मोक आई विल बिकम कूल. यू आर नॉट बीइंग कूल, यू आर जस्ट destroying your lungs, you're destroying your mental peace. Fuck it. Smoke, मतलब जैसा ये तुमने बताया ना, गुटखा, स्मोक, ये सब मतलब क्या ही बोलोगे, छोड़ो. अच्छा, I was talking. Anyways, let us introduce ourselves. Honest Baatcheet, episode 3. Prithviraj, Trideep, and yeah, let's. And मैंने पहले भी बताया था, our first episode has hit 100 views. Our second episode is also doing good. It's on 84 views. So very good for a new podcast, because मैंने भी ना इसको ज्यादातर शेयर नहीं किया है. मैंने, I will be honest, मैंने just स्टेटस में दिया है. हम लोग ने भी, मैंने नहीं किया है. Exactly. जिसको देखना है, पसंद आ रहा है, देखो. ऑर्गेनिकली जो भी व्यूज आ रहे हैं और धीरे-धीरे और भी होंगे, आशा कर रहा हूँ. तो वो तो है ही. And I have got some. मेरा एक फ्रेंड है, मतलब I won't name him. He told me to not name him. He told me to talk about bullying, right? फर्स्ट एपिसोड में हमने बुलिंग के बारे में हाँ, तो he shared me his story. So मुझे बताया कि अगर if you feel about it, then go for the story. मतलब स्टोरी के बारे में बात करो, उसकी स्टोरी के बारे में. So I would explain to you, right? Okay, so he's a guy. He's pretty good. Then मतलब उसका मेरे एज का ही है, and
उसका जो स्कूल पे पहले ट्रांसफर जहाँ पे हुआ था इन गुवाहाटी ऑल्सो, आई ऑल्सो डोंट वोंट नेम द Okay. आई ऑल्सो वोंट नेम द स्कूल हम्म। बिकॉज उसने मना किया, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा. तो व्हाट हैपेंड इज ट्रांसफर, ठीक है, जैसे तुमने बताया था ना, तुम ट्रांसफर हुए थे नए, तो उसके लिए एक अलग परिवेश क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट था. Environment. तो वो जब वहां पे जाए ना, उसके बाद बहुत गंदी तरीके से बुलिंग हुआ. ही इज लिटिल बिट फैट, उसका Okay. फैटर, मतलब ओबिस. Like I told you. या सेम. मेरा भी तो same उसके story साथ था. क्या हुआ, आई फेल्ट रियली बैड, राइट. उसके साथ क्या हुआ, उसके सारे जो दोस्त थे, राइट, दे यूज्ड टू उसका अंडरवेयर वगैरह खींच देते थे, दे यूज्ड टू स्ट्रिप हिम नेकेड, वैसा टाइप को. Yeah. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट ही टोल्ड मी ना, ये तो ठीक है, अच्छा दोस्त का नॉट ठीक है, बट मैं मान सकता हूँ, बट वर्स्ट पार्ट इज द ट्यूशन टीचर ऑल्सो डिड द सेम. What? या हिज टीचर यूज्ड टू बुली हिम, मतलब वो No. He didn't take any stand. नो बिकॉज Okay. वो स्टोरी बता रहा था कि वो हम्म। उसी से मतलब बोल रहा था कि काफी ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, लाइक द टीचर यूज्ड टू हेट दिस दैट किड ना. हमारे स्कूल में भी हमने देखा था, Yeah, एक there are some टीचर partial रहेगा, teachers, या yeah. टीचर रहेगा ना, वो They treat एक you differently. वो एक बच्चे को ना, वो हेट तक आ जाएगा. हेट इज ए बिग वर्ड, बट वो Yeah. करते थे यार, पार्शियली बहुत ज्यादा ट्रीट करते थे. एंड आई रियली फील बैड अबाउट हिज स्टोरी, क्योंकि उसका जो टीचर था, जैसे कि उसने मुझे बताया कि वो जब अकेला रहता था, उसको बेकार में मारता था, बेकार में गुस्सा देता था. एंड बेसिकली ना, एक छोटे बच्चे का दैट वाज द बिल्डिंग एज ना, क्लास 5 4, उसमें अगर तुम्हारा मॉडल डाउन कर ले, उसमें अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन कर ले ना, अंडर तुम्हारा फ्यूचर में ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं इसके वजह से, बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज आते हैं, मेंटल ट्रॉमास आ जाते हैं. एंड वही था, लाइक व्हाट्स योर पॉइंट, मतलब अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, हाउ शुड दे स्टैंड फॉर इट, हाउ शुड दे डील विद इट बेसिकली. तो व्हाट आई फील इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ जो हुआ, I can relate to it because it has happened to me. I was a fat kid. But what I feel is जब तुमने मुझे कहा कि teacher was also teacher, doing that, yeah, that it was it a particular teacher? Yeah, particular teacher, एक okay? teacher. Like okay, you said you tuition teacher. this tuition teacher. So what I felt is कि like this is मतलब जो hypocrisy का जो मतलब एक extreme level होता है ना, so it मतलब ये वही level है. हाँ. एक टीचर हम किसको कंसीडर करते हैं? समवन हु बिल्ड्स यू. एक टीचर कौन होता है? गुरु, जिसको हम गुरु मानते हैं. ही मतलब लेस द बेसिक फाउंडेशन. एग्जैक्टली. मेरे लिए भी उतना बहुत ज्यादा डार्क था ये चीज, क्योंकि देखो, अगर एक टीचर तुम्हारे फाउंडेशन में इतना खराब तुमको कर देना, तुम पूरा लाइफ के लिए तुम चूक चुके हो. एग्जैक्टली. तुम लाइफ के लिए चूक चुके हो. अभी देखो, लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, इफ यू आर फेसिंग बुलिंग यू गो टू योर टीचर. अभी टीचर ही कर रहे हैं, तुम किसको बोलोगे? So this fucked up, is yeah. like completely very fucked up, and like I want to tell it like YouTube is a good platform. मतलब मेरे को ये what I felt कि मतलब आप एक टीचर हो ना, तो टीचर का ड्यूटी क्या रहता है कि you should build someone, उसका जो मतलब बेसिक जो फाउंडेशन है, you lay that. You teach him basically. Yeah. तो तुम उसको अच्छा टीच करोगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा टीच करोगे तो बुरा सीखेगा. एक क्लास 5 में जो पढ़ता है बच्चा, उसका ज्यादा से ज्यादा उम्र कितना होगा? 8-10 साल एवरेज. तो उस बच्चे को अगर आप फेलो स्टूडेंट्स के साथ बुली कर रहे हो, मतलब वो जो मतलब जिस मेंटली उसको जो एक हिट करेगा उसके दिमाग में, तो व्हाट द फक, मतलब आई एम सो यूजलेस, आई एम सो होपलेस, आई एम सो मतलब ही विल स्टार्ट टू फील अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. या. एंड उसी की वजह से ना, उसका क्या रहता है ना, उसका मतलब मैं वही बोल रहा था, he will start hating himself, and that's the worst thing you can do to a person. So मतलब this is, I don't know, कोई जो भी तुम्हारा टीचर था यार, he is not a human, and he is fucked up in his mentally. He's fucked up mentally basically. He has some fucked up mentality. So yeah, that thing is fucked up. And अभी मैंने और एक चीज सोचा था, like बोलने के बारे में, like the thing, क्या सोच रहा था? Okay, हाँ. Let's move on from that. Okay, so any last advice you want to give in one sentence, a class advice for someone who is facing bullying, or someone who has faced bullying? So if you have faced bullying, I would say कि जो भी हो, मतलब if you see even a teacher is bullying you, या टीचर तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, I would say कि go file a complaint, take some legal action. अगर आप छोटे हो, अगर आप बच्चे हो, आप like you can, अगर वो टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, go to the headmaster or the principal
और अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है, nobody is listening to you, you take someone with you जिसको आप ट्रस्ट करते हो, go file a complaint to the police because it's illegal to even bully. It's illegal. And It is illegal. Take some action. आप अभी बच्चे and if you ever feel कि like I'm telling this honestly, if you are in Guwahati, because we can't go everywhere, if you are in Guwahati, yes. We have our Instagram. If you ever feel bullied like this, we can help you out as much we can. You can we'll bring you to our platform. Not even visibly. If you don't want to come, we will sort it out, help you out. अगर तुम्हें कुछ ऐसा bullying feel हो रहा है and you are not able to talk to your parents, you are not able to talk to your friends about it, you are not able to talk to your, because the teacher is only bullying you, right? So what we will do, if you are from Guwahati, if you are from anywhere else, we will see what we can do. But if you are from Guwahati, yes, we can go, we can handle it out in our own way, and we will help you out. So don't feel ashamed, don't feel afraid. Yeah, we can just go to our Instagram and you can reach us, because we can do this socially, right? Yes, we can do this, of course, definitely. So that will be, we will do whatever we can to help you basically. And अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है? एंड बताओ, तुमने कुछ सोचा है किसके बारे में बात करना है? मैं तो भाई थोड़ी देर पहले तुमको वही पूछ रहा था वही पूछ रहा था कि आज किस टॉपिक पे बात करेंगे. हाँ, बेसिकली बताओ. तो बेसिकली मैं सोच रहा था कि लेट्स टॉक अबाउट startups today. Great idea. मेरे same friend suggested me to talk about MBA चाय वाला. Oh, what's your take on that? Okay. क्योंकि I have recently researched. I will just give you some facts. Then yeah. I'm really not so much. I'm not very familiar with Praful Billor. What happened is now you can actually give me something. What happened? मतलब चाय किसी को पता है नहीं पता है, MBA चाय वाला सबको पता है, because he marketed himself in that way. He's a brand. He's a brand. He has built, इतना मेरे को समझ में आया कि उसने एक ब्रांड बिल्ड किया है, एंड ब्रांड उसके फेस के साथ जुड़ा हुआ है, एंड यही चीज ना उसके लिए अभी लॉस में जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज अपना बेचा है, बहुत सारे 17 lakhs 18 lakhs लेके फ्रेंचाइजी बेचा है, एंड ऑल द फ्रेंचाइजीज, लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज आर गोइंग डाउन बिकॉज उसमें प्रफुल नहीं है. दे आर रनिंग लॉसेस एंड उस प्रफुल के खिलाफ अभी 7 या फिर 8 FIR केसेस चल रहे हैं फ्रॉम द फ्रेंचाइजी ओनर्स. सो आई हैव बीन रिसर्चिंग अबाउट दैट ओनली, एंड व्हाट आई फील इज ना, देखो आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, तुम फ्रेंचाइजी ओनर हो, तुम चूतिए हो क्या? चाय के बिजनेस के लिए 18 लाख रुपए जस्ट फॉर द नेम ले रहे हो. अरे इट्स नॉट जस्ट अबाउट MBA चाय वाला, देयर आर सम, मतलब असम में जो भी, मतलब अरे हाँ भाई, हाँ, अरे लो नाम क्या है, चाय सुट्टा, नरम चाय, we won't take the नरम चाय. Okay, that's a pretty good name, so I won't take that. नरम चाय, then चाय में S, there are pretty, but ये क्या चुतिया बनती है ये, एंड उसको चाय बेचना है, तो सीधा मतलब चाय बेच. आप फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हो भाई? हाँ, अरे नहीं, तुम खुद स्टार्ट करो, तुम बनाओ ना बीकॉम चाय वाला, तुम खुद का कुछ करो ना, तुम फ्रेंचाइजी के बिजनेस में मत पड़ो. इफ यू आर डूइंग इट, ठीक है, तू अभी KFC को ला रहा है ना, तब ले फ्रेंचाइजी, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना. मैकडॉनल्ड्स ले रहा है, क्योंकि उसका क्या है, बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी, उसका क्या है ना, बिकॉज द थिंग इज व्हाट आई फील, प्रफुल का जो ब्रांड है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रफुल, दैट इज नॉट, या प्रेजेंट था when he started. And उसका जो वो फेमस किस लिए हुआ, मोटिवेशन, वो चाय के लिए फेमस नहीं हुआ. He became famous because of his stories, because of motivation. Number of stories. I've seen lot of shorts, reels, podcast, shorts, reels. So जहाँ पे वो like he has a lot of stories जहाँ पे वो अपने स्ट्रगल के बारे में बोलता है, क्या होता है उसके साथ, वो कैसे आया चाय के बिजनेस में. And Praful did a really good job, but the thing is the other people who are just copying him, अभी ये बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है. अगर एक चीज कोई करता है ना, उसको सैचुरेट मत करो, अभी सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है कि अभी चाय का बिजनेस चल ही नहीं रहा है. किसी के लिए नहीं चल रहा है. गुवाहाटी में ही देख लो, कितने सारे आउटलेट्स है, देयर आर नंबर ऑफ चाय के आउटलेट्स, मतलब अभी जस्ट, मतलब होम ग्रोन भी बहुत है, मतलब जो गुवाहाटी में ही मतलब स्टार्ट है, गुवाहाटी से ही है,
और MBA चाय वाला भी है यहाँ पे, तो देयर आर नंबर्स ऑफ चाय के आउटलेट्स एंड पीपल आर लाइक नाउ कि हम लोग चाय कहाँ से खाएं। वही एग्जैक्टली एंड द थिंग इज वही और स्टार्टअप का And वही ये this मटका चाय thing यार, I'm like sick of this shit. मटका man. चाय Everyone is selling fucking and what the मटका. fuck is pan chai? I recently tasted in that Adavadi one, na, that uncle. I tasted pan chai. It tasted disgusting. Pan What the chai. fuck is pan chai? What the fuck is pan chai? तुम चाय को छोड़ दो. These are the At two. least do some justice to chai. अरे these are the two things. I would leave another thing. You will agree. Okay. जिसके साथ ना molestation हो रहा है. One is chai. One is Maggie. Maggie. What the fuck is रूह अफ़ज़ा मैगी? रूह अफ़ज़ा मैगी. घर में पानी नहीं है क्या? पानी से बनाओ ना मैगी. What the fuck is रूह अफ़ज़ा मैगी? अबे भाई उस दिन मैं तेरा देख रहा था भाई, कुरकुरे मैगी बन रही थी। कुरकुरे मैगी यार. मैंने बोला ना एक चाय और मैगी के साथ ना मोलेस्टेशन हो रहा है. बलात्कार हो रहा है. अरे चाय और मैगी अगर इंसान होते ना पुलिस के पास कंप्लेन करने जाते हैं मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बचाओ, मुझे पानी के बदले रूह अफ़ज़ा कुरकुरे में भिगोया जा रहा है. मैन सीरियसली दिस इज मतलब ये नेशनल लेवल पे हो रहा है. थ्रेट है, नेशनल थ्रेट है ये. थ्रेट ब्रो. इट्स सिंपल. चाय दूध चाय पत्ती चीनी के साथ बना के We honest बातचीत are taking a stand for chai and Maggie. We don't support that. जो भी आप कर रहे हो ना एटलीस्ट चाय और मैगी को छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग को ऑथेंटिक जो है अभी वही नहीं मिलता है, पता है ना, वही पसंद अभी वही मिलता नहीं है. अभी वो एंडेंजर्ड हो गया यार. सिर्फ रोड साइड के जो उसमें ही मिलता है, बाकी कहीं पे सिंपल चाय पी लो. अंकल एक चाय, क्या चाय चाहिए? चाय के आउटलेट में कड़क चाय, जिंजर चाय, मसाला चाय, कटिंग चाय, मैंगो चाय, पाइनएप्पल चाय, स्ट्रॉबेरी चाय, बॉटल चाय, बनाना चाय, रोस्ट चाय, पान चाय, बोका चाय. अच्छा बताओ, another thing apart from the अच्छा, this is startup. What's your favorite गाली? Like say any gali. We are Bengali. Like, are we should we speak about gali on YouTube? Episode 5. चलो episode 5 में अब लोग अभी थोड़ा रिसर्च कर लेंगे कि are we supposed to speak मतलब येलो डॉलर तो नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए कैरी मिनाटी है ऑलरेडी. तो let's keep the question. Yeah. स्टार्टअप. अच्छा बता, तूने स्टार्टअप के लिए बोला MBA चाय वाला, मैंने बताया द चाय बिजनेस, मैगी बिजनेस, और दूसरा कुछ स्टार्टअप जो स्टार्टअप के बारे में लाइक मेरा एक है कि मतलब जो इंडिया में जो फिनटेक है ना, इट्स लाइक ग्रोइंग, मतलब मैसिव ग्रोथ कर रहा है. इट्स लाइक द फिनटेक का जो मार्केट है ना, इट्स लाइक क्रेजी. ओके, इट्स गिव मी एन एग्जांपल. क्रेजी. गिव एन एग्जांपल इज लाइक कि देयर आर नाउ बंच ऑफ स्टार्टअप्स. So basically क्या हो रहा है कि मतलब and it is also benefiting the e-commerce websites like Flipkart and Amazon. Okay. How? मैं तुमको explain करता हूँ. So what they are doing is, for example, ये तुमको जो है लोन दे रहे हैं. Okay. और लोन मतलब तुमको ऐसे कैश लोन नहीं दे रहे. They're basically allowing you to pay Purchase. On product. Okay. ये लोग तुमको EMI ऑप्शन ना, इजीली मंथली ऑप्शन. एग्जैक्टली. मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा इंडिया में व्हेन क्रेडिट कार्ड्स, यू वुडंट रिक्वायर क्रेडिट कार्ड टू बाय स्टफ फ्रॉम ऑनलाइन. ओके. एंड इन टर्म अगर तुमको EMI पे भी परचेस करना होगा ना, क्योंकि एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस कि आजकल क्या हो रहा है कि मतलब UPI हैज ब्रॉट इन रिवॉल्यूशन फॉर द मार्केट. ट्रू. मतलब मर्चेंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मतलब आई एम सॉरी आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट फिनटेक बट आई आल्सो मतलब ये भी फिनटेक में ही पड़ता है. So मतलब UPI ने अभी क्या किया है, like I visited a lot of restaurants all across Guwahati. मैं बहुत जगह में जाता हूँ, खाता हूँ. So मतलब एक क्या था कि मतलब मैं 2023 की बात कर रहा हूँ. 2023 के बिगिनिंग में there used to be a lot of places जहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करता था. ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब बेसिकली स्वाइप मशीन हर किसी के पास होता था. कोई भी एवरेज मतलब कपड़े का दुकानी मान लो, कोई भी रेस्टोरेंट, कैफे, कहीं पे भी मेरा कार्ड स्वाइप करता था, चल जाता था. बट नाउ अभी मतलब क्या हो रहा है कि मतलब लेट 23 से अभी तक मतलब मैंने अभी क्या देखा है कि nobody is fucking keeping swipe machines. Exactly. And उसमें it's not present. अभी मेरा क्या हो रहा है कि कभी-कभी क्या होता है कि सैलरी क्रेडिट होने में देरी हो जाता है. So I'm a credit card holder.
ठीक है. तो क्रेडिट कार्ड होल्डर क्या हो रहा है, आई हैव अ मास्टर कार्ड, सो बेसिकली या तो टैप करके पे कर सकते हो या स्वाइप में पे कर सकते हो, ठीक है. एंड देयर आर आल्सो, अगर हाँ ओके, इफ यू देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आप उसको Then you can, yes, yeah. अपने यूपीआई में कनेक्ट करके वो आप पे कर सकते हो. बट इफ यू आर ए मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड होल्डर, बिकॉज ये सब इंटरनेशनल है, ठीक है ना, तो यू ओनली हैव द ऑप्शन कि आप एटीएम से अगर कैश विड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, या यू हैव टू स्वाइप और टैप, ठीक है, यू हैव दैट ऑप्शन. बट अभी क्या हो रहा है, मर्चेंट्स दे आर लाइक दे डोंट वांट टू कीप द स्वाइप मशीन. That's the extra cost now. That extra cost for you. The banks are charging them. Yeah, exactly. Banks are charging them monthly basis or yearly basis. I'm not very sure. But so मतलब अभी क्या हो रहा है, UPI is free. कोई भी अपने दुकान में QR लगा लेगा, है ना. So it's like कि मतलब अभी कोई भी रख नहीं रहा है, मतलब स्वाइप मशीन नहीं रख रहा है. तो मतलब I am telling you, if you are planning to get a credit card for yourself, आप अच्छे से देख लेना. Don't go now. And the same, क्योंकि जैसे कि तुमने बताया ना, एक पॉइंट पे कि क्रेडिट कार्ड won't exist, won't be a thing, मतलब वो मतलब तुम्हारे इंडियन मार्केट के लिए आई कैन से जो फ्यूचर आ रहा है, इंडियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड won't exist. And the same app you were talking about now, that is giving the free, not free, that is giving the minimum interest rate. Minimum. So I won't take the name SM, basically I will just short from it, SM. So what they are doing now, they are also providing the offline stores also, because in city center we can use SM. Did you know about that? No, I don't know. You can use SM. There are stores, yeah. Okay, stores we can, yeah, you can pay from SM. Okay. In Trends, you can pay through SM in city center. There are 2 or 3 restaurants also that I won't take the name. I actually don't know the name to take. There are few restaurants that we can pay through SM. So it's really good. Yeah, it's really good. It's good. It's really good. It's so what I was talking is कि this fintechs, what they are doing is they're providing you loan basically. अगर तेरे को कोई प्रोडक्ट लेना है, सपोज तेरे को एक हेडफोन लेना है, तू हेडफोन के लिए क्या करेगा बेसिकली, तो तेरे पास अभी कैश नहीं है, पॉकेट में 500 पड़ा हुआ है, ओके, क्या करेगा तू 500 खर्चा कर देगा, खर्चा कर दूंगा, हाँ, ठीक है ना. लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल आस्क यू टू पे कि मिनिमम 500 तुम दे दो, बाकी 2 to 3 इंस्टॉलमेंट्स में तुम बाकी दे दो. और इंटरेस्ट रेट वो लोग मतलब 1% बहुत मिनिमम, मतलब बहुत मिनिमल 1% तुझसे चार्ज करेंगे, 100-150 तुझसे ज्यादा चार्ज करेंगे. तो इससे क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स जो है ना उसका भी ग्रोथ हो रहा है, सेल मिल रहा है उसको, सेल मिल रहा है, क्योंकि तेरे बिहाफ में तो वो फिनटेक जो कंपनी है वो पे कर देगी, तो बाकी तेरे पास जो तू अभी 500 से तू एक हेडफोन ले रहा है, तो तू बाकी उसको मंथली तू उसको ईएमआई दे पाएगा, ईएमआई में दे देगा तू, ठीक है ना. इससे ई कॉमर्स को बेनिफिट हो रहा है, इससे ये लोग को, और ये लोग क्या होता है कि ये लोग ई कॉमर्स से भी ले रहे हैं, कमीशन ले रहा है, हम लोग से इंटरेस्ट ले रहा है, तो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा एक मीडिएटर के थ्रू काम कर रहा है, मीडिएटर के थ्रू काम कर रहा है. इट्स लाइक इट्स क्रेजी ब्रो, इट्स लाइक इट्स ब्रिंगिंग लाइक क्या बोलूं, एक मतलब चेंज, मतलब एक रिवॉल्यूशन है तू बोल सकता है पूरे मतलब इंडियन मार्केट के लिए. एंड लाइक पीपल लाइक अस, लाइक कभी कभी क्या होता है कि अभी तेरे को अभी 10-15 हजार का कोई हेडफोन अच्छा लगा, कुछ मतलब कोई भी चीज, गैजेट कुछ अच्छा लगा, तो उसको कुछ, अभी तेरे पास पैसे नहीं है, बट इट्स यू नीड इट, यू हैव, तू बहुत दिन से प्लान कर रहा है कि तेरे को एक लेना है, कि तू नहीं ले पा रहा है. तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं लेते अभी, क्या फिर से मेरे पास अभी पैसे नहीं है, किसी भी कारण से तेरे पास अभी पैसे नहीं है, तूने सेव नहीं किया, तूने खर्चा कर. तो इन सच के मतलब दो सिनेरियोस तू क्या करेगा, यू गो फॉर इट. I will go for it, and that helps me ना, that helps me, क्योंकि मेरा मंथली तो पैसा आ ही रहा है, मंथली पैसा आ रहा है. एंड जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो करते हैं, तूने बताया जो अमेज़न पे लेटर है, फ्लिपकार्ट पे लेटर है, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग पे लेटर, एंड वो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट का खुद का नहीं है, दे आर आल्सो यूजिंग थर्ड पार्टी ओनली, दे आर गोइंग विद द थर्ड पार्टी ऑप्शन. सो बेसिकली क्या है, इट्स लाइक crazy, pay later, yeah, and there are number of bunch of apps, startups and apps that you'll find on Play Store, और also मतलब तुझको ads भी आएंगे कि मतलब they are doing a very good job actually they are doing a good job. And the thing is that only, like maybe वही सोच रहा था, like these startups they are doing, and India is now booming in startups, and ये बात मेरा मतलब पता चला ना, like after Shark Tank, बहुत ज्यादा startups आ चुके हैं, and they are really good, some startups are really good, and after Shark Tank, like they are also getting a business boost. Yeah, exactly. I would like to take a name of a brand,
and मैं उसको उसका कपड़ा में like snitch snitch bro. Damn. And the marketing team of Snitch भाई उन्होंने एक बार स्टार्क टेक में आके जो मार्केट किया है ना भाई अपने आप Yeah, को, crazy. ऐसा भी नहीं कि उनका बहुत सस्ता है, ऐसा भी नहीं कि सस्ता उनका नहीं। बेस्ट क्वालिटी है, बट द थिंग इज हाउ दे हैव प्लेस्ड देम इन द मार्केट, क्योंकि क्लॉथिंग ब्रांड में ना अभी बहुत ज्यादा है. आई विल टेक बहुत अनदर ज्यादा नेम, competition. पावर लुक. Yes, Right. bad है. They are like मतलब वो लोग स्निच से भी मतलब स्निच इज लाइक मतलब H&M दे उन्होंने खुद बताया कि वो लोग H&M और Zara. मतलब Zara के वो जो बीच वाला है ना दे आर इन दैट सेगमेंट, या ठीक है. वो लोग ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज्यादा मिनिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, मतलब एक एवरेज वो लोग का रेंज है. एंड देयर आर मतलब एवरी आई डोंट नो लाइक एवरी सीजन तो आते हैं उनका नया नया कलेक्शन. एंड आई एम लाइक मैं बहुत ज्यादा मतलब एवरी हर सीजन में उनसे मैं कुछ खरीदता हूँ. समर अभी समर आने वाला है. उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है ना स्निच का, it's cool. Like you have seen ट्रेंडी. या आई नो, you've seen my collection, so मैं बहुत ज्यादा snitch and like the one you've mentioned, Power Look. Power Look. You suggested me Power Look. Power Look. I bought some t-shirt. I bought some shirts from Power Look, and damn the quality. I loved the quality. They're good. Power Look is really good, and yeah, most of the I've brands. also purchased. You only suggested. Yeah, I only suggested. Actually वो shirt तूने बता था तू लेगा, मैंने ले लिया था. अरे quality भाई, Power Look is. They are good actually. Power Look is They're different pretty level. good. And वही है like स्टार्टअप का वही है, मतलब स्टार्टअप कल्चर इज नाउ इन इंडिया ना. कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मैं क्या ही कर रहा हूँ, मुझे भी स्टार्टअप करना है. Startup यार क्या कर रहा हूँ यार, कुछ करते हैं ना ब्रो. कुछ करते हैं. लॉकडाउन में हम लोग का हुआ था, हम लोग सोच रहे थे चाय का ही बिजनेस खोल लेते हैं, फिर MBA चाय वाला आ गया एंड ही फॉक्ड आवर बिजनेस आइडिया. नहीं, चाय के साथ इतना मोलेस्टेशन में नहीं कर सकता. और वी आर आउट ऑफ द चाय गेम नाउ. अभी We are out of तो the chai चाय लेके कुछ नहीं करना है भाई. अभी कुछ दूसरा करते हैं, पॉडकास्ट को लेके करते हैं. We are right now. Right now on honest बातचीत, honest podcast. Yeah. I will just restart. Yeah, so this is a bit, and अभी dark भी हो चुका है, and we have talked about, what have we talked about? Let's summarize. At first we spoke about we talked about bullying. Okay, so yeah, We talked bullying about का, the dark side of the fitness industry. and also then we talked about that chai molestation and Maggie molestation. Molestation. So yeah, this is it, and let's yeah, that's all pretty much, I guess. दूसरा कुछ any topic you want to? For today, I think that's pretty much it. And also one thing for the bullying part, I would like to say it again, like that we have appealed you guys that if you are facing any issues, Yeah, you can. if you are locally तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, like if you are around in Guwahati, somewhere around in Guwahati, और अगर तुम बाहर से भी हो, like try to reach us, and also try to get in touch with us. We'll do whatever possible from our end. We'll try to help you as much as possible. Yeah. And also one more thing, that you can always reach us to our social media handles. It is Instagram. You can contact us on You can Instagram. contact us on Instagram. You can also drop A comment, yeah. on YouTube, and you can tell us if you have any ideas. हाँ, next उसके लिए भी कुछ बोल सकते हैं. Yeah, Even if you want to come to our podcast and share your story, that is also, you're open to that is that. also like if you also don't want to like be present in our podcast, but you want us to share your side of the story, which We can do that. we can do that. You can always reach us. You can always mail us at honestbaatcheet@gmail.com. Yeah. Right. Well, and I don't know if that's the correct email ID. Yeah, that's a correct. That's That's a honestbaatcheet@gmail.com. gmail.com. You can always, and we'll also ये वीडियो में डाल देंगे. हाँ, डाल दूंगा वीडियो में, We'll- surely, we'll- definitely. somewhere here or there. आ जाएगा. हम लोग ऐड कर देंगे. You can And, also mail just us like- at honest baatcheet. And yeah, that's pretty much it for today. And मिलते हैं episode 4 में. This was Like also one more thing, like yeah, give us your ideas, like तुम किस टॉपिक पे हमसे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो. Exactly, you can. मेरे पास कुछ आइडिया ऐसे. Do tell me if you. मैं यहाँ पे एक पोल भी डाल दूंगा, ठीक है, अगर तुम लोग Yeah. इतना देर सुन रहे हो. Do check the poll. First of all, I have some ideas. That is some of our personal stories, some dark stories. Then another thing is something related to jobs. ठीक है, something related to jobs, like employment. Third is something related to horror. yeah. We can do it. And the fourth thing is something related to content creation.
because I've been creating content for a long time. He's also been creating content for a long time, so we can talk about that. We'll talk about that. Here- And would also like to get input from our fellow content creators, creators. yeah, we will also bring some guests, not big because we are also not big enough. We will try to get some Like guests from our there circles. from our circle. We'll try to get some guests, and friends. hopes आप लोगों को भी पसंद आएगा वही. Yeah. And तब तक के लिए subscribe, follow us on Instagram, Honest Like. बातचीत, like, share and subscribe and comment कर देना कैसा लगा कैसा नहीं लगा. This is Honest Baatcheet, Prithviraj. Sridhar signing off. Signing off. Peace out. Peace. So